یہ مطلب جن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پوشیدہ چیزیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ انسان جو ہے ظاہر نظر آتا ہے جو انسان، وہ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ جن کوئی علیحدہ مخلوق ہے۔ پوشیدہ چیز مخلوق نہیں ہے، وہ پوشیدہ چیزیں نہیں، مخلوق ہیں، لیکن جن میں بہت ساری مخلوقات آ جاتی ہیں نا، صرف ایک ہی چیز کی جب ہم جن کہتے ہیں جو مسلمانوں کا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایک خاص مخلوق ہے جو مطلب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پڑھ کے بھی گئے اور پھر وہ انہوں نے تبلیغ بھی کی، اور یعنی وہ ایک خاص مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے اسی طرح جن ایک مخلوق ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، جن ایک اصطلاح ہے جس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ نہیں، نظر آئے یا نہ آئے یہ تو الگ بات ہے، مخلوق تو ہے نا۔ ہاں جی، مخلوق تو ہے، ظاہر سارا کچھ مخلوق ہی ہے، سب کچھ اللہ نے مخلوق۔ اپنے عبادت کے لیے، نہیں مخلوق تو بہت ہے نا، لیکن ان دونوں کا خاص ذکر کر کے یہ کہا کہ اپنی عبادت کے لیے میں نے بنائے۔ ہاں جی، اچھا، نہیں دیکھیں نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، درخت بھی، چیز سے جرین پرند بھی، سب کچھ عبادت کر رہا ہے۔ انسان کے علاوہ بھی جو دوسری چیزیں وہ بھی عبادت کر رہی ہیں اللہ درخت تعالیٰ۔ ہیں، یہ جو بھی ہیں سب عبادت کر رہی ہیں، کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جنت ان کا دیکھیں، ان کے لیے تو کوئی شریعت نہیں ہے نا، جنت دوزخ کا تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا اور اس نے اس پیغام کو سن کر انسنی کر دی، اس پر نہیں، وہ اس کے اوپر پھر حکم چلتا ہے نا۔ تو درخت تو پہلے ہی اسی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی جو درخت کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا وہ تو وہ کر رہا ہے، اور وہ اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اسے ہٹ جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ ہاں مکلف ہے، اس کو لازم کرنا ہے، نہیں تو گناہ ہوگا۔ ہاں اچھا، وہ کرے گا، اس کو ثواب ملے گا، ہاں اس کا بدلہ ملے گا۔ اب یہ بالکل جو عبادت کر رہے ہیں، ان کو کیا، ان کو کوئی بدلہ ملے گا، جنت ملے گا؟ نہیں، ان کا حساب کتاب ہوگا؟ ہاں، عبادت وہ کر نہیں رہے، بلکہ یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ان کی تخلیق سے جو ان کا مقصد تھا۔ وہ چرند پرند کیڑے مکوڑے جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ سب وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے بنایا، اس لیے وہ تو اللہ کے عبادت گزار ہیں اس لحاظ سے۔ لیکن انسان جو ہے وہ چونکہ اس کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار کرے، تو اس وجہ سے اس کے جو بھی وہ فیصلہ ہوگا اس کی جزا ملے گی۔ اچھا کام کیا تو اچھی جزا ملے گی، غلط کام کیا تو سزا ملے گی۔ نہیں، میری بات آپ سمجھیں، وہ تو ٹھیک ہے، ایک وضاحت آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دونوں کے لیے آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں، اب انسان عبادت کرے گا، اس کو جنت ملے۔ اچھا، ابھی میں نے فرق بتا دیا آپ کو کہ اچھا، کیا فرق ہے۔ ابھی دیکھیں، اب دوسری بات کو دیکھ لیتے ہیں۔ چلے اتنی بات تو ہوگی ہماری، اب آگے چلتے ہیں۔ ہاں، جب آپ پڑھیں گے آیا یا معشر الجن ہاں، والانس ہاں، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ یہ دو مخلوق جن عبادت کے لیے اللہ پاک نے جو مکلف ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ دو مخلوق ہیں، یہ درختوں کو، پرندوں کو کہا جا رہا ہے۔ نہیں دیکھیں نا، آپ کو ابھی میں نے بتایا جن سے، جن ایک مخلوق نہیں، ایک اصطلاح ہے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ جن سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو انسانوں میں بہت زیادہ اعلیٰ اونچا مقام رکھتے ہیں، بہت دولت مند ہیں، رتبہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم باہر نکلتے ہیں، زیادہ تر وہ اندر رہتے ہیں، حفاظت کے خیال سے بھی اور اس خیال سے بھی کہ وہ مطلب وہ کبھی کبھی نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی جن کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ تو یہاں انسانوں اور جنوں سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ، انسانوں کی جو قسم ہے وہ بھی ایک جن ہے، تو جن ایک اصطلاح ہے، بھائی بات یہ ہے، ایک خاص مخلوق نہیں ہے۔ اچھا اتنی سی بات۔ دیکھیں وہاں آیا، دیکھیں یہ تو
ہم عمل کریں ہمیں تو جنت ملے، ہاں جن عمل کریں ان کو کچھ نہ ملے، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ مکلف دونوں ہیں، دونوں عبادت کے لیے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں جنت بھی دو ہے، وہ کن کے لیے؟ ایک تو انسانوں کے لیے، وہ دوسرے جنت کس کے لیے؟ کون سی دو جنتیں ہیں؟ لمن خاف مقام رب ہی جنتان، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ تو ایک جنت جنوں کے لیے نا، ایک انسانوں کے لیے نا۔ نہیں، اس جنت سے مراد یہ کہ جو خدا تعالیٰ کی خشیت رکھتے ہیں ان کی دنیا بھی جنت بنتی ہے اور پھر آخرت بھی جنت بن جاتی ہے۔ بھجن بات تو وہ ہو رہی ہے قیامت کی، حساب کتاب کے بعد ملنے والے کی، ہاں تو دنیا کیسے ہو آ گیا؟ نہیں، یہاں پہ لمن خاف مقام رب ہی ہاں جنتان، تو تو یہاں پہ قیامت کی بات کہاں آ گئی؟ یہ تو بتایا گیا ہے کہ جو خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے لیے دو ہاں جنتیں، نا، وہ جنتاً کہاں ملیں گے؟ دنیا میں یا وہاں؟ ایک جنت دنیا میں اور ایک آخرت میں، جنت دو دنیا میں، دنیا بھئی جب بات ہو رہی ہے سورۃ الرحمن جب آپ شروع کریں گے تو کون ہاں سی بات ہو رہی ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو وہ تو دیکھیے کن سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں دو باری مخلوق سے بات ہو رہی ہے، ایک سے تو ہو نہیں رہی، دو سے بات ہو رہی ہے، دونوں کو یہ سزا اور جزا ہوگا، دونوں کو انعام ملیں گے۔ نہیں، یہ تو آپ کی اب تفہیم ہے، دو سے بات ہو رہی ہے، ایسے تو ہم تو نہیں ایسے سمجھتے۔ لمن خافا مقام ربی، جو بھی خدا کا مقام پہچان لے گا، اس کی خشیت رکھے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس میں دو مخلوقوں کی تو بات نہیں ہو رہی۔ بھائی وہاں جو بات ہو رہی ہے نا، کیا بات ہو رہی ہے؟ کن سے بات ہو رہی ہے؟ ایھا الثقلان، ہاں دو باری مخلوق سے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو ہم ہیں، دوسرا کون ہے؟ بھئی یہ انسانوں میں ہی ہے نا وہ لوگ۔ ارے بھائی یہ چوہان بھائی، دو ایھا الثقلان آپ دیکھ لیجئے اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں اس سے کیا مراد ہے؟ جنت دو ہیں، گفتگو دو سے ہو رہی ہے، یا معاشر الجن والانس ایھا الثقلان من دونہما جنتان، یہ ساری باتیں دو مخلوق سے ہو رہی ہے۔ دو، اللہ پاک کی مخلوق تو بہت ساری ہے، ہوں تو یہ دوسرا جو ہے وہ ثقل، ایک تو انس ہے۔ ہاں، تو ابھی آپ کو بتایا کہ اس سے مراد انسان ہی ہیں، ان کو بھی جن کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ان کی صفات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ صفات کہ کیا؟ وہ بہت طاقتور مقتدر لوگ ہیں ہوں اور بہت دولت مند ہیں ہوں اور بڑے متکبر لوگ ہیں، ہوں تو ہیں تو وہ انسان ہی، اچھا لیکن ان کو عام انسانوں سے علیحدہ کر کے بیان کیا گیا۔ دیکھیں چوہان صاحب خلائی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بھائی بات کیا؟ یہ ہے، چوہان صاحب آپ یہ صحیح باتیں کر رہے ہیں یا مذاق میں کر رہے ہیں یہ باتیں؟ نہیں، میں صحیح کا بات کر رہا ہوں، آپ اچھا، کو مذاق لگ رہی ہے؟ نہیں یہ جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے نا، یہاں پر لوگ صحیح باتیں بھی مذاق میں کر جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، بات یہ ہے، بات تھوڑی سی کرنے دیجئے بھائی جان، مذاق ہو جی کچھ بھی ہو۔ دیکھیں، سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ہاں اب دو مخلوق سے بات ہو رہی ہے، اللہ پاک کی جو دو بڑی مخلوق ہے، ایک ہے جن اور ایک ہے انس، دونوں سے بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یا معشر الجن والانس، دونوں سے بات ہو رہی ہے۔ اور وہاں پر یہ بھی بات آپ دیکھیں گے کہ دو جنتوں کی، جنات کی اپنا ذوق ہے، انسانوں کا اپنا ذوق ہے، دو جنتوں کی بات۔ انہیں سنانے کا تو وہ بس یہ انہوں نے کر دیا ہے۔ چلے بھائی کیا جی کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ طارق چوہان صاحب کہہ رہے تھے کہ جنات جو ہیں یہ کوئی مفتی غیبی کوئی مبشر چیز ہے۔ آ گیا۔ چوہان جی کیا ہو گیا؟ چوہان جی اور جنات پڑ گئے نا ان کو۔
अच्छा, मेरी आवाज दुरुस्त आ रही है? उनके नेट में जिन्नात आ गई। ये कहते हैं जी जी उन- चौहान जी आप रहमतुल्लाह पीर साहब मुफ्ती साहेब जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी ठीक आ रही है। अच्छा, ये मिर्जा कादियानी तो जन्नात को बकायदा मखलूक कहता है तारक चौहान साहब, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? वो तो अच्छी मिर्जा बात। कादियानी का मौकफ आप वाला मौकफ तो नहीं है। क्या मौकफ है उनका मुफ्ती साहब? एक मिनट, ये तारक चौहान साहब आए हैं तो फिर ये ना। जी चौहान जी चौहान साहब, मुफ्ती खंजीर से मैंने बात नहीं करनी, अस्कानी साहब आप करें। नहीं तारक साहब इस तरह बात ना करे बदतमीजी के साथ। नहीं ऐसे नहीं करें प्लीज तारक चौहान साहब, आप बुजुर्ग हैं, नहीं ऐसी बात नहीं करें प्लीज। अस्कानी साहब ये कोई एक हदीस है अखलाक के मुतल्लिक, वो जरा बयान कर दें। किसी भी इंसान के अच्छा, बुरा मिर्जा होने से कादियानी जो है वो कहता है मलफूजात जिल्द 4 है और सफ़ा 76 है। वो कहता है दुनिया में 4 मोटी बातें मानने के काबिल हैं। 4 बातें वो कहता है मानने के काबिल है। वो कौन सी हैं 4 बातें? नंबर 1 मलाइका, नंबर 2 रूह इंसानी और इसका बका बाद अज मर्ग, नंबर 3 जन्नात का वजूद, नंबर 4 खुदा ताला का वजूद। आगे कहता है ये कादियानी मुरब्बी तारक चौहान जैसे लोगों के लिए मिर्जा कादियानी कहता है लोगों ने सबसे पहले जन्नात का इनकार किया, फिर मलाइका का, बस 2 बातों को उड़ाकर अपनी और खुदा की रूह के कायल हो बैठे, यानी कुछ करना और कुछ ना करना। फिर आगे वो सूरा अल बकरा की आयत लिखता है, ये तारक चौहान कादियानी मुरब्बी जैसे लोगों के लिए कहता है आफातु मिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद। फिर वो तारक चौहान कादियानी मुरब्बी जैसे लोगों को खिताब करके कहता है इसमें फिर दहरियों ने ही कमाल किया है कि कुछ भी ना मानो और सब का इनकार कर दो। सफ़ा नंबर क्या है मुफ्ती साहब? जी ये मलफूजात जिल्द 4 और सफ़ा 76। अगर ये मैं नया एडिशन है, 12 जल्दों वाला एडिशन है मुफ्ती साहब। स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ, मेरा जो है ना स्क्रीन बड़ी कर दे तो मैं दिखा दूँ। नहीं मुफ्ती साहब, एक ये उसका एडिशन है 5 जल्दों वाला, एक है 10 जल्दों वाला, आप जी किसकी बात ये कर रहे हैं? 5 जिल्दों वाले। 74 ठीक क्या है, है? 74 का वो समझाइए जरा। ये ले जी, ये मलफूजात जिल्द 4 सफ़ा 76 और ये हाईलाइट इबारत। 74 जरा इंग्लिश में बोल लीजिए, क्या है 74? 76 हाँ 76 ठीक। 76 जी। ये देखें जी, ये इबारत मौजूद है, पढ़ के सुना दें इनको। ये सुनाई तो है अभी। ये फिर ये जो तारक चौहान साहब ने अभी सब बयान किया है तो ये तो जाया हो गया ना। हाँ जी, वो सब कुछ जाया हो गया ना। हाँ ये तो फिर यही मिर्जा तो साहब तारक के चौहान मुताबिक मुरब्बी जाया साहब हुआ? से पूछना उसमें वो है ये कि ये जिन्नात का इनकार नहीं किया जा सकता, तो जिन्नात का इनकार कौन कर रहा है? नहीं तो जिन्नात से वजूद मुराद क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ क्या है वजूद मुराद है जिन्नात से? जन्नात का हाँ, वजूद। तो जिन्नात के अभी वजूद से कैसे? आसकानी साहब बार बार अल्लाह ताला आपको ये फरमा कह रहा रहे है थे कि क्या खलक़ल जिन्ना वल जन्नात इंसा का वजूद इल्ला है कि नहीं। आप लियअबुदून। कह रहे थे कोई गैबी चीज है, आप कह रहे थे ये कोई गैबी चीज है। ये अकल के अंधे का क्या करे आदमी, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको मिर्जा कादियानी मुल्हिद कह रहा है, धैर्य कह रहा है। देख लें, मिर्जे की माननी है कि मौलवी की माननी है कि अब्दुल गफार जंबे की माननी है। अब्दुल गफार जंबे को मिर्जा कादियानी मुल्हिद कह रहा है, धैर्य, और उसकी टीम को, पूरी टीम को, तमाम कादियानियों को मिर्जा कादियानी धैर्य कह रहा है। देख लें, फिर फैसला आपने करना है किसकी माननी है और किसका इनकार करना है। हाँ जी,
ਚਲੋ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੌਲਵੀ ਬੰਦਰ ਸੁਵਰ ਖੰਦੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਟੇ ਜੇ 2-4 ਨਾਰੇ, ਉਹ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਡਿਫरेंट एंगल से है। अच्छा, मैं बैठ के नीचे ना जी खालिद भाई सुन रहा था तो काफी देर की कॉल डाली थी, लेकिन वो चलो किसी की तवज्जो नहीं पड़ी, तो हवाले तो और भी है मेरे पास, हवाले तो और भी। अभी इससे एक हवाले का जवाब देंगे तो फिर अगले हवाले में पेश करूंगा। अभी एक का जवाब आया नहीं तो मैं अगले हवाले क्यों पेश करूं? नहीं देखे, मुतकल्लम अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार है, तो इसके साथ मिर्ज़ा साहब की कोई तहरीर होगी तो फिर मानी जाएगी ना। अगर तारक चौहान साहब खुद कोई इज़ाद करेंगे या कोई और मर्ज़ी करेगा तो वो तो काबिल कबूल नहीं ना है। मुफ्ती असल साहब में कादियानियत ने ना, मिर्जे कादियानी ने इन कादियानियों को, कादियानियों के जितने भी गिरोह हैं इनको मुल्हिद कर दिया है सच्ची मुची। अपने कोलो फेल के जरिए इनको दैरिया बना गया है वो। इसी वजह से इन कादियानियों का कोई दीन मजहब नहीं होता, हर चीज का इनकार कर देते हैं। मुफ्ती साहब जी मुफ्ती साहब खुतबा हजतुल विदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा कराम इकट्ठे सन ते ਉਹ ਕੀ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਮਾਹਲ ਹੋਏ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੋ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਛੇੜੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਅੰਦਾਰੇ ਨਾਲ। कहाँ है, लगा लीजिए फिर से मुफ्ती साहब, जी फिर से लगा लीजिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, मलफूजात जिल्द पंजम है, सफ़ा 76 मुफ्ती साहब पीर साहब को कभी नहीं मिल सकता। मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि पीर साहब देख रहे हैं इनकी ना वो वेबसाइट पे, वहाँ पर 10 जिल्दें हैं, वहाँ पर 5 जिल्दें नहीं है। साहब मैनू WhatsApp पे मैसेज करो भाई, मैं तो नहीं सेंड करना। हाँ, इन्होंने ना 5 जिल्दां वाला दसो किथे है, ऑडिशन किथे है, क्योंकि ये 10 चलो कोई नहीं, एक छोटा सा मुझे WhatsApp पे मैसेज करें, मैं अभी असल स्कैन ही सेंड करता हूँ। हाँ, इनको ना वो क्लियर करें प्लीज, ये मुझे पता है वो कंफ्यूजन का शिकार हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात, एक छोटा सा मैसेज करें तो मैं फिर सेंड करता हूँ। हाँ, मैंने मैसेज किया आपको। चलें, ये लें आ गया मैसेज, और ये लें पहुंच गई है। हाँ बिल्कुल आ गई, एक मिनट। बल्कि अगर कोशिश करें तो अपनी स्क्रीन के पीछे बड़ी सी लगा दें और ये इनकी स्क्रीन बड़ी कर दें। नहीं ठीक है, अभी मैं इसको देख लूँ। दुनिया में 4 मोटी बातें मानने के कायल हैं, क्या है? काबिल हैं। पहले ज़रूरी है कि अपने घर और नफ्स की सफाई करो, बाद में लोगों की तरफ तवज्जो करना। यानी अपने मानने वालों को नसीहत कर रहे हैं जी। अच्छा, दुनिया में 4 मोटी बातें मानने के काबिल हैं। अब 4 मोटी बातें मानने के काबिल हैं। मलाइका मारूफ हो गया, रूह इंसानी, जो इंसान में रूह है, ठीक, और इसका बका बाद अज़ मर्ग, यानी मरने के बाद भी रूह का बका। इसी तरह जिन्नात का वजूद, चौहान जी, जिन्नात का वजूद, खुदा ताला का वजूद। आसकानी साहब 2 चीजें उसने की हैं, जन्नात का वजूद और खुदा ताला का वजूद। ये जन्नात भी गैबी चीज है तो अल्लाह पाक भी गैब है, तो जैसे अल्लाह का इकरार और उसके वजूद का इकरार करना एक जरूरी है, ऐसे ही जन्नात को भी मानना जरूरी है जी। लोगों ने सबसे पहले जन्नात का इनकार किया। देखें,
لوگ جنات کا انکار کر رہے ہیں. پھر ملائکہ کے بارے میں پس دو باتوں کو اڑا کر اپنی اور خدا کی روح کے قائل ہو بیٹے. یعنی اپنے اور خدا کے قائل ہو بیٹے اور جنات کو انہوں نے رد کر دیا. یعنی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بقرہ. اس میں پھر دہریوں نے ہی کمال کیا کہ کچھ بھی نہ. یہ صاف مضمون ہے محترم، میں آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، دیکھ لیجئے. وہ جنوں کا انکار کرنا، جس طرح دہری کچھ نہیں مانتے تو کچھ لوگ جنات کو نہیں مانتے بتا رہے ہیں، صاف ہے. یہ ذرا دیکھیں چوہان جی. پیر صاحب یہ جو جنوں کا انکار کا وہ بات کر رہے ہیں، وہ ایز اے مخلوق کا انکار کرنا وہ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی اللہ صاحب ایک چیز نوٹ کریں، ویسے طارق چوہان قادیانی مربی صاحب کی بولتی بند ہو گئی ہے، اور گلاں چھڈو تسی دی چس لو. وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ مسئلہ ہے. وہ کرنا چاہتے تے ہن تے آسکانی صاحب کرتے نے نا پے انہاں نال تے کرن نا. پیر صاحب نہ طارق چوہان صاحب، پیر صاحب نہ کرو تسی گل، مفتی صاحب نوں چھڈ دو، رہن دو، مخاطب نہ ہو. میں نے بھیج دیا چوہان جی کو، ذرا دیکھ لیجئے. آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر وہ یعنی ازکانی صاحب اس تحریر میں کون سی ڈیفرنٹ بات کی ہے انہوں نے؟ اور جنات کے وجود کا انکار کون کر رہا ہے؟ کسی نے کیا انکار یہاں پہ؟ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنات سے مراد کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو انسان. کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جن. اب قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے، ہاں اس سے مراد کیا ہے، اس پہ اوپر ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. دیکھیں، یہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ جن ہے ہی نہیں ہے. نہیں جن کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ہے ہمارے خیال میں. نہیں خیال تو نہیں انکار بتائیں تو آپ. کوئی نہیں مرزا کر صاحب کا رہا. حوالات ہے، مرزا صاحب نے کیا بتایا جن کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا تو خیال نہیں نا قابل قبول طارق صاحب. ایک منٹ دیکھیں میرے بھائی. جنات کے وجود اور اسی طرح خدا وجود، یہ دونوں کو ماننا ضروری ہے. جنات کا وجود اور خدا تعالیٰ کا وجود. اگر آپ یہ کہتے کہ جنات کے وجود سے مراد انسان ہیں تو آگے کی عبارت اس بات کو رد کر دیتی ہے. وہ دیکھو کس طرح سے. اللہ کے وجود کو تو مانتے ہیں، جنات کے وجود کو بھی آپ مانتے ہیں، لیکن جنات کو آپ انسان کہتے ہیں. اب دیکھیں آگے کی عبارت اس کو ختم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ لوگوں نے سب سے پہلے جنات کا انکار کیا، پھر ملائکہ کا. بس دو باتوں کو اڑا کر اپنی اور خدا کی روح کے قائل ہوئے. یعنی انسان اپنے تو قائل ہے اور خدا کا بھی قائل ہے. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے، اس عبارت سے وہ انسان کو تو ثابت کر رہا ہے، اپنے وجود کو تو وہ مانتا ہے، لیکن جنات کو رد کر دیا. دیکھو پھر آگے کی عبارت ذرا آپ آرام سے دیکھیں. اگر ہم مان لیں جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں، چلیں مان جاتے ہیں، آپ نے مانا جنات انسان کو کہا، ٹھیک، لیکن جنات کا انکار کر کے پھر کس چیز کے وہ قائل ہو گئے ہیں؟ اپنی اور خدا کے روح کے قائل ہوئے. تو ہم کون ہیں؟ اپنی یعنی انسان خود کا قائل ہوا کہ ہاں میرا وجود ہے، میرا روح ہے. اسی طرح اللہ پاک کا وجود ہے، دونوں کے تو وہ قائل ہے، لیکن جنات کو رد کر دیا. جنات وہی مخلوق ہے، کوئی اور مخلوق ہے. اس عبارت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے. جی چوہان جی آگے کہتے ہیں یعنی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا. اور پھر آگے بتاتے ہیں اس میں پھر وہی دہریوں نے ہی کمال کیا. دہریوں نے تو کیا کمال کیا؟ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ جنات کا انکار کر دیا، اپنے وجود کا. حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ 4 چیزوں کا. دیکھیں 4 چیزوں کا انسان کو قائل ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ ملائکہ، روح انسانی اور اس کا بقا. دیکھیں روح انسانی اور اس کا بقا. آگے بقا بعد از مرگ. اور اسی طرح جنات کا انسان الگ، جنات کو الگ ذکر کر رہے ہیں. اگر ایک ہی شے ہے تو ڈبل کیوں بتا رہے ہیں؟ اور پھر خدا تعالیٰ کا وجود. کتنے وجود بتائے؟ ملائکہ، روح انسانی اور اس کا بقا.
مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے، موجود ہے۔ 2 ہو گئے، روح ملائکہ، روح انسانی، جنات کا 3 ہو گئے، خدا کا وجود 4 الگ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد لوگوں نے سب سے پہلے جنات کا انکار کیا، انسان کی وجود کا انکار نہیں کیا، جنات کا انکار کیا، پھر ملائکہ۔ اب ملائکہ، پس 2 باتوں کو اڑا دیا، جنات کو انکار کر دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا۔ 4 ماننی چاہیے تھی، اللہ، وجود انسانی، ملائکہ، جنات۔ 2 کا انکار ہوا، پیچھے کیا بچے؟ 2۔ جنات کو اڑا دیا، فرشتوں کو اڑا دیا، بچا کون؟ اپنی روح اور خدا کے روح کے قائل ہوئے، 2 بچ گیا، 4 میں سے 4 وجود بتا رہے ہیں۔ مزید یہ کہا کہ یہ تو کچھ لوگوں نے کیا، لیکن کمال دیکھیے کہ دہریوں نے کیا کیا۔ دہریوں نے تو بہت بڑا کمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہ مانو، سب کا انکار کرو۔ اب دہریوں نے کیا کیا؟ سب کا انکار کر دیا، اللہ کا بھی اور جنات کا بھی، فرشتوں کا بھی، سب کا انکار کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صاف ہے میرے خیال میں، تھوڑا سا آپ دیکھیں، یہ عبارت تو یہی بتا رہی ہے، باقی واللہ عالم۔ جو ملائکہ ہیں وہ بھی ایک تشریح طرف، ملائکہ کیا ہیں؟ اب مرزا صاحب نے کہا ستارے بھی ملائکہ ہیں، تو مطلب ہے کہ یہ ساری باتوں، ملائکہ کا انکار تو نہیں ہے، لیکن ملائکہ سے مراد کیا ہے؟ جن کا انکار نہیں ہے، جن سے مراد کیا ہے؟ وہ آپ کا تفہیم کچھ اور ہے، ہماری تفہیم کو اور ہے۔ تو پھر تو لیکن یہ خدا کہنا کے کہ بارے میں بھی تفہیم جن کوئی کا الگ ہی ہے نا۔ انکار مرزا کیا قادیانی کہتا ہے خدا میں ہوں، چلو تفہیمیں تو آپ کی پھر بڑی الگ الگ ہی ہیں نا۔ خنزیر کسی ایک پھر چیز کو آپ نے بول چھوڑا ہے اسلام والی کہ نہیں چھوڑا؟ ہر چیز کے اندر ہی تفہیمیں۔ 1400 سال کے اندر کسی کو یہ تفہیمیں سمجھ نہیں آئی، وہ صرف مرزا قادیانی کو سمجھ آئی ہیں تفہیم۔ جاہل انسان ہے یہ، کیا کروں میں اسے بات۔ قادیانی کی طرح کہہ دیا کرے، کہہ دے کہ مرزا غلام قادیانی جیسے جاہل تھا ویسے ہی مولوی جاہل، یہ کہا کرے۔ برا مرزا صاحب نے اس میں کوئی وہ تعویل وغیرہ نہیں کیا، جو بھی لکھا ہے وہ واضح لکھا ہے۔ یہ تھی وہ بات جو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے ان قادیانیوں کو دہریہ کر دیا ہے، کسی دین مذہب کا نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے الہادیت بڑھ رہی ہے، اور یہ جتنے بھی آج کل کے ایکس مسلم نیو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے قادیانی ہیں۔ اور ابھی تو پوری کتابیں موجود ہیں اس کے موضوع کے اوپر کہ احمدیت سے الہادیت تک، وہ کتاب ایک ملحد نے لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے ملحد بنا، یہی باتیں تو ہیں۔ مرزا قادیانی نے ان قادیانیوں کو کسی جوگا نہیں چھوڑا۔ آئینہ دکھایا، ایک دوڑ گئے، ایک حوالے دے اتنے ہی ہوا ٹیٹ ہو گئی۔ پھر صاحب یہ حوالہ مجھے بھی سینڈ کرنا پلیز واٹس ایپ جبڑیاں مار رہے تھے، میں کافی دیر کا بیٹھ کے نیچے سن رہا تھا۔ پھر صاحب خالد بھائی آپ کو سینڈ کر چکا ہوں، ہاں مجھے سینڈ کر دینا، آلریڈی۔ بڑا امپورٹنٹ والا ہے، یہ مفتی صاحب کو تو سارا پتہ ہے۔ خیر آپ نے آتے مفتی صاحب تعلقہ کر دیا تو پھر کیا جواب دیں آپ؟ اوپر سے مرزا کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے بھاگنا ہی تھا۔ یہ جناب وہ الگ کرسی بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ عبدالغفار جمبا، پوچھتا اس کو کوئی ہے کوئی نہیں ہے، وہیں چوہا جی ہے،
वो बैठा है, 2-4 उसके पीछे बंदे लगे हुए हैं, एक ये है तारक चौहान है, एक अकबर है और एक बंदा और है, टोटल 4 बंदे हैं जी। और पूरी जमात एक कादियानियों की लग से बना के लो जी हम लग ही मुंह चुके ने अपने अपने। वो मुफ्ती साहब कह रहे थे कि टोटल जो है ना वो 200 हैं, 200 नहीं टोटल 200 कितने कोई ले ए 4 बंदियां तू वध बंदा को पंजवां मैनू वहा दें ते मैं मन जावां। मनु तो नहीं खैर पता है तारक चौहान साहब नहीं का। नहीं कोई नहीं जे इन्हां दा मंदा ही कोई नहीं है। ओए ये अब्दुल गफ्फार जंबा इतने बंदे नहीं घेरे जितने, इससे ज्यादा तो यकीन जानो वो नासिर सुल्तानी ने घेर लिए थे और ताहिर नसीम ने इससे ज्यादा बंदे घेर लिए थे जी। नासिर सुल्तानी वाकई ज्यादा घेर लिए थे उसने। हाँ जी हाँ जी वो भी मुफ्ती साहब इसी जमात से जो ना। हाँ जी जी आमिर भाई, ये सारे कादियानियों के फिरके हैं ना, मुख्तलिफ फिरके बने हैं जो वो अपनी अगर अपनी कुर्सियां लगा के दुकानें खोल के बैठे हैं। वो लड़की के चक्कर में ना पड़ता तो उसकी एक बड़ी एक जमात हो जानी थी आज। जी जी वो तो जेल में है ना अभी, नासिर सुल्तानी जेल में है। वो मुझे पता है, लेकिन चक्कर पीछे लड़की का ही था। एक मर्ज़ई से उसने रिश्ता उसकी बहन का मांग लिया था, उसकी बहन ने उसका रिश्ते का इनकार कर दिया। उसने ये बूढ़ा बंदा है, मैं जवान हूँ, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी। वो सारा फड्डा वहाँ से शुरू हुआ, फिर इसने बयान देने शुरू किए, पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान आके पकड़ा गया। लेकिन जो इसकी जमात में फड्डा शुरू है नहीं वो फड्डा ये नहीं, शायद कोई और हो। वो ये था गालबन वो मिर्जा मसरूर की जो कुड़ी है ना, उसका रिश्ता चाह रहा था कि मैंने, तो मिर्जा मसरूर ने इसको पकड़वाया था। ये कोई गेम इनकी हुई है कोई, वल्लाहु आलम कुछ और भी हो सकता ये है मेरे मुफ्ती साहब इल्म में ये तो। खिलाफत का चक्कर सारा चला हुआ है इनका। हाँ जी खिलाफतों के हर एक अपनी अपनी कुर्सियां हर को अपनी अपनी चमकाना चाहता है, लेकिन उसने काफी बंदे घेर लिए थे। हाँ जी काफी जमात थी उसकी बड़ा। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जंबे के पीछे तो बंदा ही कोई नहीं है। और नासिर सुल्तानी को फिर भी बोलना आता था, उसकी आज भी तकरीरें और उसका चैनल मौजूद है, जाके देखें। इस जंबे को तो जबड़ियां बोलने ही कख नहीं आता, ऐसे बस तकरीर हो गई है। 200 से जायद बताते हैं मुफ्ती साहब। नहीं आसकानी साहब सुनाने को तो ये कादियानी भी कहते हैं हम 200 से ज्यादा मुल्कों में पहुंच गए हैं, हालांकि दुनिया के टोटल मुल्क 196 हैं। बोलने को क्या, दावे करने को क्या। हाँ जी दावे करने को तो शेर है ये, मिनटों सेकंडों के अंदर ये पूरी दुनिया भर देते हैं कादियानियत से। सही बात है। अच्छा मुफ्ती साहब ये जो खत्म ये रूहानी, ये कुछ और सुन लें। रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 है सफ़ा 185 के ऊपर मिर्जा कादियानी बकायदा तौर पे कहता है जिन्नो इंस को अल्लाह ने पैदा किया है कि वो मेरी परस्तश करें। और बकायदा जिन्नो इंस के ऊपर उसने तफसीली नोट लिखा है इसके ऊपर, इस सफ़े के ऊपर। वो कहता है जन्नात एक मखलूक है और इसको अल्लाह पाक ने अपनी परस्तश के लिए पैदा किया है। लेकिन ये इल्हाम से पहले तो कहीं नहीं लिखा। फिर आगे नहीं ना, पहले बात को छोड़े, अभी तो मैं दलाइल दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना दे सकता हूं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 2 सफ़ा 274 के ऊपर वो फिर जिन्नो इंस के बारे में रोशनी डालता है। कहता है कि इनको कह दे कि अगर सब जिन्नो इंस इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि कुरान की कोई एक नज़ीर भी पेश करें तो नहीं कर सकते। वो जिन्नो इंस कौन है भाई? एक बकायदा इंसान एक मखलूक है, और जब जिन कोई मखलूक ही नहीं कोई, और उनको अपनी परस्तश का हुक्म ही नहीं, उनको वो उनका कोई बकायदा वजूद नहीं, वो कौन है? बड़े बड़े ठाकुर हैं बता रहे। ओ बस सही ड्रामेबाजी, कादियानियत का कोई थल्ला नहीं है जनाब। वो कहते हैं ना झूठ की कोई सरजमीन नहीं होती। बक 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 बक, दुनिया का सबसे बेहतरीन और आसान काम है इनकार। पंजाबी में वो कहते हैं मोएदा ते मुकरे दा कोई इलाज नहीं। मतलब ये कि कोई बंदा मर जाए या मुकर जाए किसी बात से तो इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ, ये कि ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो भी दीन इस्लाम में तारीफ़ात की, जो भी इसने आकर
दजल फरेब की है, वो तो एक लागू मौजू है, हमें पता है। जी लेकिन जब आप उसकी अभी तहरीरें पढ़ रहे हैं तो जो मुझे समझ आ रही है कि वो उसका वही मौक़िफ़ है जो हमारा है, ठीक है। लेकिन इसकी जमात ने, इसके ये कहाँ से आ गया? पैरोकारों ने 100 साल में उसकी तालीमात को तो बिल्कुल उल्ट कर दिया ना, 100 साल में। हाँ जी, नहीं यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की वो वाली तालीमात नहीं है। असल में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी एक मुंह के अंदर 2 जुबानें रखता था। ये जो मैंने अभी तहरीर पेश की है, इसका मुखालफ भी उसकी तहरीरों के अंदर मौजूद है। हाँ हाँ, मतलब चोर दरवाजे इन्होंने खोल के रखे हुए हैं, हर चीज का इकरार भी है, इनकार भी है। तारक साहब को अगर नहीं पता बिलफर्ज था। अगर बिलफर्ज खालिद साहब आसकानी ये वाली इबारत पेश करते, सॉरी, जो हाँ, बिल्कुल। वो पेश कर रहा था तारक चौहान, यानी ये इनकार कर देते कि नहीं ये जन्नात कोई चीज नहीं है, बस वो वैसे ही खाली खोली, तो इस तारक चौहान ने वो वाला हवाला देना था जो मैंने पेश की है। अच्छा अच्छा ये है अच्छा। कादियानियत, मतलब बंदरों की तरह ये ना दरख्त बदलेंगे, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, एक तरफ से पकड़ोगे दूसरी तरफ निकल जाएंगे, दूसरी तरफ से पकड़ोगे वो पहली तरफ आ जाएंगे। ये है इनका। हर बात के 2 मौक़िफ़ बना के रखो। तो मौक़िफ़ अल्लाह जो को भला करे। भी मौका माल के मुताबिक सही है उसको फिट कर दो, बात को बदलना हाँ जी, बदल दो। ये है कादियानी। ये है असल। जहाँ हमें धोखा देना हो तो फिट कर दो हमारे वाला, हाँ और जहाँ हमें वो अपना पेश करना हो तो वो असली वाला पेश कर दो, ताकि ये है हम भटकते रहें यार इसमें असली कौन है और नकली कौन है। तजादात, तनाकुजात, बस और कुछ भी नहीं है। कादियानियत ये है, टोटली कादियानियत ये है, तनाकुजात का, तजादात का मजमू है। सही बात है, सही बात है, ये बात की बात ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। और खुद मिर्जा कादियानी इस तनाकुजात के बारे में क्या कहता है, रूहानी खज़ैन जिल्द 10 सफ़ा 143 के ऊपर कहता है, जाहिर है कि एक दिल से 2 मुतनाक़िज़ बातें नहीं निकल सकती, क्योंकि ऐसे तरीक़ से इंसान पागल कहलाता है या मुनाफिक। या मुनाफिक हाँ जी, मिर्जा गुलाम कादियानी रूहानी खज़ैन जिल्द 22 सफ़ा 191 के ऊपर कहता है, मगर हर एक को सोचना चाहिए कि उस शख्स की हालत एक मुखबितुल हवास इंसान की हालत है कि एक खुला खुला तनाकुज अपने कलाम में रखता है। फिर आगे रूहानी खज़ैन जिल्द 10 सफ़ा 142 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, मगर साफ जाहिर है कि किसी सच्चार और अक्लमंद और साफ दिल इंसान के कलाम में हरगिज तनाकुज नहीं होता। हाँ, अगर कोई पागल और मजनून या ऐसा मुनाफिक हो कि खुशामद के तौर पर हाँ में हाँ मिला देता हो, इसका कलाम बेशक मुतनाकिज़ हो जाता है। और ये एक तनाकुज़ क्या होता है, मुतनाकिज़ क्या होता है, इसके बारे में आम लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं अर्ज कर देता हूँ कि तनाकुज़ क्या होता है या कलाम मुतनाकिज़ क्या होता है। तनाकुज़ ये नकज यानी अरबी के अंदर नकज से या लिया गया, ठीक है जी, इसका मादा जो है नकज है, ठीक है, और इसका माना होता है तोड़ना, यानी एक चीज को अगर पकड़ लोगे तो दूसरी टूट जाए, दूसरी को पकड़ो तो पहली टूट जाए, तो तनाकुज़ का अपना मतलब ही ये है तोड़ना, ठीक है जी। और 2 कज़ाया के दरमियान ऐसा इख्तलाफ हो कि अगर एक को सच्चा कहें तो दूसरे को जरूर झूठा कहना पड़े, और इसके बरक्स अगर एक को झूठा कहें तो दूसरे को सच्चा कहना पड़े, इसको कहते हैं तनाकुज़। तो खुद मिर्जा कादियानी का पूरी किताबें तनाकुज़ात से भरी हैं, तज़ादात से भरी हुई हैं। तो इसका मतलब मोदी साहब जो इनकार किया है मिर्जा कादियानी ने वो खुल के किया है, लेकिन जब इकरार किया तो वो इतनी चीजें ला के बीच में उसके अंदर जो ऐसे कंबल के अंदर घुस के ना तो इकरार कर नहीं ओ नहीं बाबा जी, इंज नहीं, इकरार भी किया और खुल के किया, इनकार भी किया तो खुल के किया। वो कहता है, पहले कहता है, बड़ा खुल के कहता है नबूवत का दरवाजा बंद है, हम उसको काफिर जानते हैं जो
नबूवत का दरवाज़ा खोले, जो नबूवत का कायल हो। अब जब वो इकरार करता है तो वो खुद कहता है कि मैं नबी हूँ, नबूवत का दरवाज़ा अब खुल गया है। लेकिन ये जो एक गलती का ज़ाला है मुफ्ती साहब, उसके अंदर जो बात मिर्ज़ा कादरी ने किया, उसके अंदर इसने नबूवत का दावा नहीं किया, इसने तो मोहम्मद अपने आप को बोला हाँ है। जी, असली मोहम्मद का हाँ, उसने मैं इसी गलती का इजाला किया है कि जो लोग मुझे नबी नहीं मानते, और नबी भी कौन सा कि मोहम्मद, वो नबी हूँ मैं, तो कोई इसका छोटा मोटा मतलब नबी भी नहीं। नाउज बिल्लाह उस साहब से तो फिर अपने आप को आखिरी नबी कह रहा है ना। जी हाँ, आजिज ने आमिर भाई पूरी किताब लिखी है, कादियानी कलमा किताब का नाम है, नेट के ऊपर भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके पढ़ें। मैंने कादियानी किताबों के असल स्कैन लगा दिए हैं किताब के आखिर में, और 100 से ज्यादा स्कैन, जिससे हमने साबित किया है कि मिर्जा कादियानी का दावा है कि मोहम्मद असली मोहम्मद मैं हूँ। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर में वो तो लिखा है, साफ उसने लिखा है। जी वाजे तौर पे एक दो हवाले नहीं जी, बड़े हवाले तो बड़े ही हैं। मोदी साहब नीचे मीनी साहब कह रहे हैं कि सारे मौलवी जो है आग निकाल रहे हैं। आग निकाल रहे हैं कि हवाले निकाल रहे हैं? सच्ची वो बात कह रहे करना, हैं मिर्जे कादियानी की हवालों का नाम आग रख दिया है। हक बोलना, सच बोलना, तो फिर उसको कहते हैं आग लगा दी। ये बात होती है असल में, क्योंकि सच जो है वो बर्दाश्त नहीं होता लोगों हम से। तो वो काम कर रहे हैं जो मिर्जे कादियानी ने कहा। हाँ जी बिल्कुल। वो कहता है कि जो जुर्रियतुल बकाया है वो मेरी किताबों को नहीं मानते। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो कहता है जो बड़े जनाब नेक लोग होते हैं, जो वो इबारत में खोल ही लूं तो फिर मैं चले वो हवाला भी दिखाता हूँ, तो वो तो कहता है कि वो लोग मेरी किताबों को मान लेते हैं, और जो रंडी के बच्चे होते हैं वो मेरी किताबों को नहीं मानते। अब फैसला कर लो कादियानी मुरब्बी जी, अगर तो मिर्जे की किताबों को मानना है तो फिर तो ठीक है। वो कहता है रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 547 और 48 के ऊपर वो कहता है कि मेरी ये तिल का कुतुबुन यंजिरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन बिअैनिल मुहब्बती वल मुवद्दती। ठीक है, वो कहता है मेरी ये वाली किताबें हर मुसलमान बड़ी मोहब्बत और मुवद्दत की निगाह से देखता है, और इसके मुआरफ से जो है ना वो नफा उठाता है और कबूल करता है मेरी किताबों को, और तस्दीक करता है मेरे दावे की। इल्ला जुर्रियतुल बगाया, मगर रंडी के बच्चों ने मेरी किताबों को कबूल और मेरे दावे को कबूल नहीं किया। अगर तो रंडी का बच्चा बनना है तो ठीक है ना, फिर किताबों को मानो मिर्जे कादियानी की। हाँ, देख लो फिर तुमने क्या बनना है भाई। मुफ्ती साहब तो पीर साहब दोनों बैठे हैं, तो मैं ना अभी जो वो एक गलती ज़ाला वाली बात थी ना कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहा कि मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अच्छा, मेरा दरमियान में से मुफ्ती साहब। नफ्स निकल गया, मेरा नफ्स खत्म हो गया, जो है ये सब कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे नज़दीक उसने और भी बहुत सारे कुफर बोले हैं साहब फना फिर रसूल का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है। जो भी है, लेकिन मेरे नज़दीक अगर इनको पॉइंट किया जाए 1 2 3 के मुताबिक, तो ये सबसे बड़ा कुफर और दजल जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने बोला है वो यही है कि मैं ही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, मेरी ज़ात उसमें गुम हो गई है, मेरे ख़त्म हो गया हूँ। तो इससे बड़ा कुफर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो छोटी चीज है, अल्लाह होने का दावा कर रहा है भाई। वो कहता अल्लाह ही मैं हूँ, रही तुनी फिल्म नामी ऐन अल्लाह व तजक्कन तो अन्ना नहीं हुआ, होगा अल्लाह ऐन अल्लाह मैं हूँ, ऐन अल्लाह कशफ की हालत में असली अल्लाह सचमुच दा अल्लाह। वो कशफ साहब जो कशफ की हालत में इसने मिर्ज़ा कादरी नहीं कशफ नहीं, और नहीं इंज ना करो कशफ केड़ा कशफ, नहीं वो कशफ तो पहली वो नहीं देखे। मैं इबारत खोल लूं पहले, आगे मत जाए, इधर ही रुकें, आगे ना जाए, उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, ये जो नहीं मानता किताबों को उनको जो है वो जुर्रियतुल बगाया। अच्छा, फिर ये दीन में जो ला इकराह फिर दीन कुरान कह रहा है, इसका क्या होगा? ये तो कादियानियों को पूछना पड़ेगा ना, ये क्या ड्रामा है तुमने लगाया है ना भाई? वो तो अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारी मर्जी, मानो मानो ना मानो ना मानो। तो ये क्या कह रहे कि यानी ये थोप रहा है ना जी। इधर देखें, एक बंदे को बांध करके उसका हाथ मुंह पैर सब कुछ बांध के
उस अपना लुकमा उसके मुंह के अंदर घुसेड़ के उसको कौन नीचे निकल जाए, ये तो वो काम कर रहा है। बांध रहे तमाम मुसलमानों को, तिलका कुतुबुन यंजिरु इलैहा कुल्लु मुस्लिमिन, यानी एक मुसलमान तेरी किताबों को मानता ही नहीं है, तू उसको थोप रहा है कि मानो मानो मेरी किताबों को, मानो मोहब्बत और मुद्दत की निगाह से देखो और नफा उठाओ इनसे और कबूल करो इनको। तो ये तो कुरान अगर के तुम खिलाफ नहीं हो करते गया। तो वो क्या हो, इल्ला जुरियातुल बगार, रंडी के बच्चे हो, गश्ती के बच्चे हो। तो ये तो कुरान के खिलाफ हुआ फिर। हाँ बिल्कुल खिलाफ है जी। कुरान तो कहता है कि ला इकराह फिद्दीन। ला इकराह फिद्दीन। अच्छा ठीक है, अब आगे वो खालिद साहब की बात करें। वो मैं तो यही वो कह रहा था अब अल्लाह की तरफ आ जाते हैं। अब ये देखिए वाज़े तौर पे अभी वो डॉक्टर डेरिंग लिख रहे हैं कि लामा साहब गलत अरबी पढ़ रहे ये हैं। फेक आईडी है, ये मुझसे फेक हाँ आईडी है। नहीं कोई बात नहीं, फेक है कोई बात नहीं, तो आ जाओ ये सामने, इनका आओ जरा, हाँ, आओ इनका जरा। वतीरा ना, ये हिम्मत नहीं, करके ऊपर नहीं ना जाते। सुने ना जी, सुने ना, हर किस्म का सौदा रखा हुआ है हमने। आ जाओ, ये मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, इबारत तुम्हारी है, पढ़ के तुम ही सुना दो फिर। ये लो अरबी के अंदर है, पढ़ लो, आओ मेरे सामने जरा पढ़ो, लगाओ इराब इसके ऊपर, करो तर्जुमा, सुनाओ मुझे। आना मेरा पुत्र कादियानियों, और बक 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 बक, इसकी एक एक लाइन के अंदर गलती है, मैं तुम्हें साबित अभी कर देता हूं, ऊपर आओ। हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, ये इस कशफ को झूठ मानते हैं या सच मानते हैं? अच्छा जी सुने ना जी, इस कशफ पे थोड़ी सी बात कर। रूहानी खज़ैन जिल्द 5 है, सफ़ा 564, आईना कमालत इस्लाम में मिर्जा कादियानी कहता है, वरईतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह, मैंने अपने मनाम के अंदर अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा, ये है उसका मनाम। ठीक है, अब इस मनाम की जो ताबीर है ये है वाह तफसीरिया, वो तफसीर कर रहा है, ताबीर कर रहा है, वत यकन्तु अन्ननी हुआ, और मैंने यकीन कर लिया कि मैं वाकई अल्लाह ही हूं, ये है उसकी ताबीर इस मनाम की, इस ख्वाब की। मेरी कोई बात को आए कोई कादियानी गलत साबित कर दे, बस इतना ही है, कशफ इससे आगे नहीं है मुफ्ती ओए साहब? बड़ा लंबा है ये हाँ, मुझे पता है, वो उसमें काफी सारी और भी बातें हैं। 564, 566, 567, ये 3 सफ़े अरबी के अंदर है, पढ़ के देख ले। वो कहता है जब मैं अल्लाह बन गया तो मैंने कहा कि मैं अब इस कायनात को असरे नो तख्लीक करूं। वो कहता है फिर मैंने इस कायनात को असरे नो तख्लीक किया, ये सूरज चांद सितारे जन्नत दोज़ख मैंने तख्लीक किए, हूरों को 6 मैंने दिन में। तख्लीक किया। 6 दिन और में, फिर 6 दिन में पे मुफ्ती साहब, 6 हाँ दिन जी में जी जी काफी है। जी हाँ जी हाँ। फिर आगे हाँ। कहते हैं मैंने आदम को मैंने तख्लीक किया है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैंने पढ़ा हुआ है जैसे कशफ, मुझे ज़बानी आपकी तरह तो नहीं याद है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ था। तो वाकई इसने कशफ में बहुत आगे निकल गया, बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। वो कशफ कुशफ की जी, इंज दे कशफ रात ਨੂੰ दाल खा के सोवो, एक प्याला पूरा भर के थे। अच्छा, रात ਨੂੰ जिस बिल्कुल मौलवी को कशफ ये नहीं पता कि कशफ ये की मुफ्ती तशरीह साहब, होती है, ये रहील साहब जिस आया मौलवी ऊपर। को ये नहीं पता कि कशफ की तशरीह होती है, वो कहाँ का मौलवी भाई? कशफ मौलवी की तशरीह होती है जाहिल। मिर्जे कादियानी ने और करवाने। भाई कशफ की तशरीह जिसको नहीं पता, ख्वाबों की तशरीह, जो शायर होता है वो अपनी शार की तफसीर खुद बताता है, जिसको इल्हाम होता है वो खुद बताता है, इल्हाम। जिसको कशफ होता है वो खुद उसकी तशरीह बताता है। मिर्जा साहब की 85 किताबों में सारी तशरीहात मौजूद हैं, जिसकी वजह से करोड़ों लोग अहमदी हो चुके हैं। तू मौलवी अच्छा तेरी रहीला दूसरी- तू ये बता के और बैठे मेरी कितनी गल हुई सुन, आज? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ वो ਤਾਲਾ कहते ने कितनी सजा हुई? दी, अल्लाह ताला दी वो यार सजा बात देखो, तो सुनना। दूसरी बरातें तुमको मुनाफिक बात कह रहे तो हैं, सुन, मर काफिर जा, कह रहे हैं, मर जा, जंदी कह रहे हैं, कादियानी। ये आपकी सजा है। दूसरी आज बरातें बैठे तुमको कितनी हुई हैं बैठे? मौलवी बच्ची मोची कह रहे हैं, देवबंद तुमको काफिर कह रहे हैं, ये लोग और तुम लोगों की बैठे सजा है। कितनी कराइयां तूने रहील? ये इनका हाल है। जिसको ये नहीं पता कि कशफ के मानी होते हैं, तशरीह होती है, वो सीधे सीधे लफ्ज पढ़ रहा है, जाहिल मौलवी। है 101 अल्लाह के फजल से। अल्लाह अच्छा, ये भी इनको नहीं पता, ये भी नहीं इनको पता मौलवी को कि अल्लाह ताला ने तुमको इतनी सजा दे दी है कि दूसरी बरात पे तुमको देवबंद जंदी कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। वो 4 नंबर जो टीचर वाह भी वाह, सजा अल्लाह ताला ने दी, फिर भी नहीं मानते पे। उन्होंने कंप्यूटर में इस्लाम
साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। फिर बाद में देते वो साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, किसकी? आपकी आवाज चली गई थी। यार मैं वो आड़ी को सुना रहा हूँ, बैतें हो गई हैं 101। अच्छा वो, लेकिन उसकी आवाज बहुत मध्यम थी। वो समझ नहीं आ रही मुफ्ती साहब, समझ नहीं आ रही। अच्छा हाँ, अच्छा बहुत अच्छा मध्यम आवाज थी, तो वो इसलिए चला गया। अच्छा 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 अच्छा, बैतें हो गई हैं 101 अल्लाह के फजल से। वो ताने मैंने देने आया था, फिर मुफ्ती साहब को देकर चला गया। लीजिए। उसका मकसद को बात ये थोड़ा सा। लीजिए डॉक्टर डेरी साहब आए हैं। नीचे तो बहुत जी। आते हैं, नीचे तो बहुत आते हैं, ऊपर नहीं कोई आता। जी डॉक्टर डेरिंग साहब बोले, माइक पटो जरा। मौलवी साहब नसना नहीं जी हुण अच्छा है अपना ही है, अपने ही नहीं हुण नसना नहीं तुसी हाँ, ठीक है। सवेर दे लगे हो अरबी गलत पढ़म तिलका कुतुबुन यनजीरु है या यनजुरु है यन शुरू कर लो जंज दी ਉਹਨੇ ਲਿਖੀ नहीं कर लो नहीं पहले दसो यनजीरु है या यनजुरु है दसो या ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। नहीं तुसी दसो तुसी इन्नी देर दे यनजीरु पढ़ रहे ਭਾਈ हो ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੰਜ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੋਂਜ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ। तुसी की समझिया सारे थे मरजई बैठे ने और नहीं ठीक है, जंज ਦੀ ਲਿਖੀ ਸੋਂਜ ਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ। दोबारा सही मेरी करके साहब पढ़ो जो ने ले आया था वही पढ़ ਆ लिया। ਜੋ ਲਿਖੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਅਸੀਂ। यनजुरु हुंदा तुसी मसीह ਉਹ मूद ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੀ ਤਰਜਮਾ मरजइयां नु तो बेचारे ने नहीं पता जेड़ा ਅਸੀਂ तुसी ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਨਾ। मेरी साहब असा बेइंसाफी नहीं करनी कि ਕਿਹੜੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ अपने ਤਰਜਮਾ को ਹੋਣਾ ਹੈ। पढ़ते ने। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ- ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਕਾदियानी ਇਹਨੂੰ ਬਾਪ बेचारे तक ਨਸਾਰਾ जेड़ा ਤੋਂ तुसी ਪੜਨਾ कशफ ਵੇ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਰਾਬਾ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਹੈ। और जेड़े ਜੇ कशफ ਬਾਪ अपने पढ़ रहे ਨਸਾਰਾ सिक्के ਤੋਂ बेचारे ਨਹੀਂ वो भी नहीं ਪੜਨਾ आंदे ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਪ ਨਸਾਰਾ ਹੀ ਪੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜਨਾ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਸ਼ਫ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਵਾਤਾ ਯਕਨ ਤੂ ਅੰਨਨੀ ਹੁਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਉਹ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਤੈ ਕੰਤਾ ਅੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ। हाँ अच्छा, एक मैं ना यहाँ वजाहत कर दूं, इधर सुने, ये हमारी मुनाजराना एक गिरफ्त है। ये कई इबारतें ऐसी हैं कि मैं गैर मारूफ बाप से उन इबारतों को पढ़ता हूँ। ये पिछले दिनों कारी साहब का भी एक मैसेज आया था मुझे, तो उनको मैंने फिर पर्सनल के अंदर ये वजाहत की थी। मुझे पता है कि असल इबारत क्या है, मैं जानबूझ के उसको दूसरे बाप से लेके जाके पढ़ता हूँ ये ताकि कोई कसम कादियानी से- एक मिनट यार, गल भी ते कंप्लीट पकड़ भी करन नहीं दियो ना, सकते। गल भी ये ते मुफ्ती साहब कंप्लीट, कसम से पकड़ भी नहीं सकते। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ। मैं गैरे मरू बाप से जानबूझ के पढ़ता हूँ कि मेरी कोई गलती पकड़े ना कादियानी आए इधर, फिर उन्होंने मैं जरा थोड़ा निसल करा। तो ये हमारी मुनाजराना एक समझ ले के एक चाल होती है। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ आते ਪਕੜ आन ना सामने आन ना। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਣ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, हाँ जी ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆएंगे। चले करें बात, अब कर लें बात। नहीं, ये मैं आपसे वही सवाल भाई किया था साहब पहले। उत्ते आओ हुण कि सिर्फ लेक्चर ही देना है जे उत्ते ये आओ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के इस कशफ को सच्चा मानते हैं, झूठ मानते हैं, क्या करते हैं? नहीं ये कशफ है या रोया है मुफ्ती साहब? और जी कुछ भी नहीं हो इन यार आसकानी साहब, ये तो वही बातें हैं, ये तो कादियानियों से या पूछने वाली है ना, ये मुझसे नहीं पूछेंगे आप। उसकी नहीं, वजह लिखा है, है, उसके कशफ एक लिखा मिनट है या सुने रोया? ये कशफ सुने है, ना, मैं कशफ अर्ज करता हूँ ना जी, मैं अर्ज फिर साहब अरबी कशफ में है, नाम लिखा हुआ है राई तो फिल मनामी, लेकिन उसका तर्जमा खुद मिर्जे ने किया हुआ है, उसमें उसने कशफ लिखा हुआ है। अब यही बात है जो हम तनाकुजात की बात कर रहे थे, यहाँ पे वो वाला तो फिर मसला है। मना में तो कशफ कैसे हो अगर गया? यार मेरी बात भी आ रही है कि नहीं? मिर्जा साहब ने पूछो जाके जिन्होंने क्या है कशफ है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? हेलो जी आवाज आ रही है मुफ्ती साहब, आ रही है, बोलो बोलो। वो उससे कैसे पूछे? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मिर्जा कादियानी अपनी किताबों के अंदर ही एक चीज को कशफ कहता है, उसका इनकार भी कर देता है, ये कशफ नहीं है। एक चीज को रोया कहता है, उसका इनकार भी कर देता है। एक चीज को ख्वाब कहता है, उसका इनकार कर देता है। कभी कहता है ये सारी चीजें एक है, कभी कहता है ये सारी चीजें मुख्तलिफ है। अब वो किस चीज को मानने, किस चीज का इनकार करें?
ये बातें कादियानियों से करने वाली हैं, मुसलमान हम आपस में बैठ के कर ही नहीं सकते डिस्कस। नहीं नहीं मुफ्ती साहब प्लीज, ये जो अभी आपने पढ़ी जी, जरा फिर से मतन पढ़िए। वरअयतुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ। तो खत्म, रायतुल फिल मनाम, ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, तो उसकी फिर तबीर खुद ही मुअब्बिर बन गया ना, तबीर खुद नकार है ना। वो ताबीर ये है कि वह तयक्कनतु अन्ननी हुआ, और मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। और नहीं, आगे उर्दू में तशरीह करते हुए उसने लिखा है कि ये कशफ है, मनाम नहीं है, कशफ। हाँ बिल्कुल सही कह कौन रहे सी हैं। तशरीह में? मिर्जे ने खुद लिखा हुआ है ना कि ये कशफ है, आगे नीचे लिखा हुआ कि मैंने हाँ, तो कशफ वो ये था ना, कशफ इतना ही है ना। वरअयतुनी नहीं, फिल मनामी पीर ऐन साहब अल्लाह। कह रहे हैं कि लफ्ज मनाम है, इसका मतलब है ख्वाब है, कशफ नहीं है, जबकि मिर्जा खुद कह रहा है कि ये कशफ है। ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये मिर्जे साहब दे कोल सारा कुछ ही मुमकिन है। ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਣ ਦੇ ਟਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਫ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਖਾਬ ਨੂੰ। ओए हाँ जी, वो ना ये वाली इबारत और है, वो रूहानी खज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 103 के ऊपर है, किताबुल बरिया में वो कहता है, मैंने अपने एक कशफ में देखा कि मैं खुद खुदा हूँ और यकीन किया कि वही। इत्थे कशफ कहंदा जे पिया, उत्थे मनाम कहंदा पिया। उन्हें मैं खुद साबित कर देना वा, मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि कशफ और मनाम अलग चीजें। उन्हें ते केड़ी गल मन्नीए ते केड़ी नू छड़िए ते केड़ी नू रखिए ते किदे ते जिरा करिए, की स्यापा है यार कादियानी। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ और तानू इतना नहीं पता लगा कि कशफ की ताबीर होती है। जो मिर्जा साहब ने ताबीर की है वो 85 किताबों में लिखी हुई है। एक सतर पढ़ के तो लोगों को बेवकूफ बना अच्छा, रहे हैं। पहले तो ये बता ना, और वो जाहिल अरबी वाली जो इंसान इबारत है, पढ़ी थी उसकी और जाहिल इंसान मुझे ये बता, दूसरी बरात पे तुमको मोची और जंदीक कह रहे हैं, यही तुम्हारी सजा है। निकालो इसको, निकालो। दूसरी बरात पे देवबंद तुमको मोची और जंदीक और काफिर कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला की सजा है आपको। मॉडरेटर जितना निकालो मर्जी झूठ इसको, बोलो, ये बातें करने आए अब जितना मर्जी झूठ बोलो, शाबाश। राहिल जी, इससे क्या फायदा? ये क्या हो गया? क्यों उतारा भाई? दूसरे बराड़ में मिर्जा जी को टांगा हुआ है तो क्या करें, हम भी टांग दें? हाँ, आराम से बात करो इधर आके। वो लड़ने आया पीर साहब, वो को बात करने थोड़ा ही है, तो लड़ाई तो हमने नहीं, लड़ने नहीं आता, वो टंगवाने, वो मिर्जा साहब को टंगवाने आते हैं कि कोई इस तरह की हरकत करेंगे, ये भी बाद में टांगे। दूसरी बराड़ में बदकारियां भी की जा रही, हम भी करें क्या? दूसरी बराड़ में क्या हो रहा है, हम क्या करें उसका? हाँ, तो पीर आसखानी साहब तुसी भी ला लो मैच वाली बराड़ ते पनिशमेंट करया करो। वही मैं हैरान हूं कि दूसरे बराड़ में किया जा रहा है, तो हम क्या करें भाई? यहाँ इबारत है, मिर्जा जी जो है कशफ को रोया कह रहे हैं, रोया को कशफ कह रहे हैं, इनमें कोई फर्क भी है या नहीं? थोड़ा आके वजाहत कीजिए ना। ये मुमकिन है। जो आप लोग हैं ना, ये तमाम अपनी इल्मी लोग तबलीग हैं, करने आते हैं। ये ना जो आप इल्मी लोग हैं ना, तमाम जो जानते हैं इल्म, ये आपको क्या क्या कहते हैं, अरबी में क्या लिख गया आपको तो पता चल जाता है ना। तो आपको बड़ा रफा डाल गया वो हकीकत में। आप सोचते रहे क्या मतलब है इसका? एक जगह कहता है कशफ है, दूसरी जगह कहता है ख्वाब है, ख्वाब को कशफ कह रहा है, कशफ को ख्वाब कह रहा है। तो ये इल्जाम तो आपके लिए मौजूद है ना, इससे आप इनकार तो नहीं कर सकते। तो ये फिर मुफ्ती साहब हैं, पीर साहब आप हैं, ज़ियार रसूल साहब हैं बड़ी मुसीबत पड़ी वही है। कह रहा हूँ कि मैंने सुना वहां तो मनाम लिखा हुआ है, फिर आगे कशफ कहा जा रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आप आजकल गाड़ी हैं या कहीं दौरे शरीफ पे निकले हुए? ये हुक्म जनाब। नहीं, मैंने आपके वाले इलाके की साइड पे आना है, तो मैंने आओ सोचा आओ आपसे आओ, मुलाकात- बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नहीं इंज नहीं से, इंज नहीं सर जी, सुक्की शुक्किया इंज बिस्मिल्लाह सुक्किया नहीं। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ। नहीं वो तो गल ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा कि अगर लैपटॉप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ 7 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਂਗਾ। तो ये नहीं है तो फिर हमें चक्कर वेला पैना फायदा कोई। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰ हाँ फिर घर ही बैठे हैं जी आराम ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਾ ਪਿਛਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੋ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਾੜ ਜੀ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇਜ਼ਾਫੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬے ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੇਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इरादा है इंशाल्लाह। ये कोशिश किया करें जिनको तो थोड़ा बहुत अबवाब अरबिया और अल्फाज अरबिया के जो अबवाब हैं उन पर महारत है, तो वो अरबी इबारत जब पढ़े, यहाँ तो पढ़े नहीं, वो कादियानी से पढ़वाए, तो या पढ़े तो जान बूझ के उसको दीगर अबवाब से लेके आने अल्फाज को। सुलासी मजीद फी के अबवाब को ले जाएं, सुलासी मुजर्रद के ऊपर, मुजर्रद के अबवाब को ले जाएं सुलासी मजीद फी के ऊपर। अगर तो वो कादियानी को थोड़ी बहुत शगफ है तो वो तड़पेगा, उसको फिर ले लें और उससे फिर जिरा करेंगे। जब ये लोगों को लफ्जों के गोरख धंधे में फंसाते हैं तो हमें फंसाते हुए क्या होता है भाई? नहीं, लफ्ज का मतलब ये है तो मतलब ये है तो मतलब ये है तो मतलब ये है। मतलब सारे तेनों ही समझ आए ने, 1400 साल किसी को मतलब समझ ही नहीं आया है। मतलब ये है तो मतलब ये है, मतलब ये है। लफ्जों के गोरख धंधे में ये लोगों को फंसाते हैं। तो मिर्जे कादियानी की इबारतों के अंदर इनको फिर लेके आए। वो जो इसने वो चैलेंज दिया था अरबी तफसीर लिखने का पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को, तो इजाजुल मसीह नाम की जो उसने लिखी थी चंद सफ़े अरबी के, और इतनी अगलात उसके सफ़ा अव्वल के ऊपर, ज्यादा दूर नहीं जाना, सफ़ा अव्वल के ऊपर इतनी अगलात है अल्लामान वालफी। और दावा उसने ये किया इन्ना किताबी हाजा बलीगुन व फसीहुन व मलीहुन, और करतूत ये उसके सफ़ा अव्वल पहले सफ़े के ऊपर फाश अगलात, फाश छोटी मोटी भी नहीं है। ये देखिए, मैं चलो दिखाई देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। ये देखें, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 के अंदर ये किताब शामिल है, इजाजुल मसीह। तो दावा इसने क्या किया था, कहता है मेरी ये किताब तो बड़ी बलीग फसी और मली है। ये देखें जरा, वो कहता है इस किताब को मैंने फी सब ईना यौमन मिन शहर सियाम, रमजान के 70 दिनों के अंदर इसको मैंने लिखा है। कौन सा रमजान है जिसके 70 दिन होते हैं? आगे कहता है फी मकाम तबई कादियां, नून गुना कौन सी अरबी में होता है भाई? जिला गोरदारसपुर, जिले को अरबी के अंदर जिला नहीं कहते। गोरदारसपुर इधर गईन आनी चाहिए थी, 2 डंडे वाली जो है ना वो गाफ अरबी में नहीं होती, पे अरबी के अंदर नहीं होता, बूर बे आनी चाहिए थी, बा। मुसाफ इसने लिख रहा था गुरदासपुर। और चलो जो भी है, अरबी में ये लिखा है ना पूरा सफाई, उर्दू में तो नहीं लिखा या पंजाबी में तो नहीं लिखा ना। मैं टाइटल पेज की बात कर रहा हूँ। इसको पता ही नहीं था जिले को अरबी में क्या कहते हैं, तो जिला लिख दिया। बस यही तो बातें है ना जी। यही तो मुकाबला बातें कर रहा था पीर मेहर अली शाह साहब से, वाह जी वाह, कमाल हो गया। वो सबईना मिन यौम क्या लिखा हुआ है जरा फिर आगे कहता है वा इन्नहु किताबुन लैसा लहू जवाबुन, मैंने तो ऐसी किताब लिखती है जिसका जवाब ही कोई नहीं। लो और बस इन बोंगियों का कौन जवाब दे यार, बताएं क्या जवाब दें? किसी के बस की बात नहीं। हाँ नहीं वो 70 दिन वाला पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ है? ये फी सबईना यौमन मिन शहर सियाम, सबईना यौमन फी शहर सियाम।
जी ये क्या बात है? ये बड़ी बड़ी बातें हैं जी, कोई बात हो तो कुछ है, सिवाय बक बक के इन कादियानियों का पता है ही कख नहीं, पता ही कख नहीं। पीर साहब इनके यहाँ महीना 32 दिन का भी होता है, और सितंबर में 31वीं तारीख भी आती है। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं, को पहले एक बात नहीं है। तो ऐसे ही इसने ये लिख दी है ना कि रमज़ान के 70 दिन, और ज़िला की अरबी नहीं आई तो ज़िला लिख दी उर्दू का अल्फाज अरबी में लिख दिया। वाह कमाल की। ये है जो पैंचर जो उसने सबसे बड़ा पैंचर लगाया है ना मुफ्ती साहब, हाँ जी जी, वो ज़िला का उसको पता ही नहीं क्या क्या वो सोचता रहा होगा, पता नहीं 2 दिन सोचा, 1 दिन सोचा कि क्या अरबी, सबसे पूछा भी होगा यार मुझे ज़िला की अरबी बताओ, तो किसी को भी नहीं पता, सारे जो हला की जमात तो इकट्ठी हुई थी। तो फिर उसने कहा बोला छोड़ो यार ज़िला को ज़िला ही लिख दो। हाँ मर्जियों ने यकीन कर लेना है, कौन सा ये किसी मुसलमान ने यकीन करना है मेरी बात पे। हाँ यार कमाल का बंदा था मिर्जा का। साहब उत्ते आओ फिर आके अपनी तबलीग करो थोड़ी जी। पी साहब ये कहाँ लिखा है, थोड़ा हवाला दीजिए मुझे, भूल जाऊँ मैं। एक्स साहेब जी जी हेलो। एक्स साहेब आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, कैसे हैं साहब? बस जी आप सुनाएं, आपका कोई सवाल है? जी मेरा ये सवाल था। जी जी करें बात। पीर साहब जाज़े मसीह का सफ़ा नंबर कौन सा है? मुफ्ती साहब कौन सी मुफ्ती साहब जी, कौन सी? मुफ्ती साहब जी, इजाजुल मसीह रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 के अंदर है। नहीं सफ़ा नंबर मैं पूछ रहा हूँ। उस सफा की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਚ ਵੇਖ ਲਓ, इजाजुल ठीक मसीह है। रिसाला में मशहूर है। ठीक है मैं देख लूँगा और कोई लूँगा। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। नहीं मिल जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात है। ठीक है हो गया, सही है सही। ये कोई आए हैं दोस्त, क्या एक्स साहब क्या पूछना चाह रहे हैं? करें जी बात। मैं पूछना चाह रहा था ऊँट के पेशाब के बारे में। क्या हो गया ऊँट के पेशाब? पीना चाह रहे हैं आप? नहीं मैं चाह रहा था क्या किया जाए इस बारे में, मुकर जाए भाई या? दिल करता है तो पी लो, इसमें कौन सा मसला है, पीना चाहते हैं तो पिए। अच्छा सही हो गया था, इसका मतलब है पीछे वालों ने भी पिया है। थोड़ी सी पी ही लो, मेरे ख्याल में बेहतर है। हाँ इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। नहीं दाल में काला सुभान नहीं, अल्लाह। सफेद है, सफेद अच्छा, ये अच्छा। दाल ये पीर साहब ने पिया हुआ है, वो कहते हैं मैंने पिया हुआ है। अच्छा ये दाल में काला कहाँ से आ गया? दाल ये सारी इजाजत दाल जो मिल है रही है वो ना? वाइट ही है। जी ये जो इजाजत मिल रही है ना, इसका मतलब है पीछे वालों ने। हाँ, ठीक है। सुभान अल्लाह। आपको क्या परेशानी है इसमें? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं सिर्फ इनके मुंह से सुनना चाह रहा था कि इन्हें भी पता है ये चीज। अच्छा चस्का कहना क्या चाहते हो? खुद ही सवाल, खुद ही जवाब, खुद ही वकील, खुद ही जज। पता था पीर मैंने- बात हो गई है, कोई बात करें हमसे करनी है, कोई कादियानियत के हवाले से करनी है तो करें आके। भाई क्या मिर्जे ने कभी पिया था कोई मूत्र शूतर ऊँट का? बताएं हमें कोई बात जो है वो निकालें। जड़े मिशन ते आयो, मिशन दसो की मिशन जे ਤੁਹਾਡਾ? भी बता देते हैं, हम इधर बैठे हुए हैं। पिछू पिछले नु पता है ते अगले नु पता है ते ओनू पता है ते इनू पता है। हद हो आप गई बता है। दें ऊँट के रोशनी डाले, 100 वाट का बल्ब डाले ऊँट के नहीं ਤੁਸੀਂ 200 ਵਾਟ ਦਾ ਪਾਓ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੂਤਰ ਪੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੈਲੋ अच्छा जी ਬਸ ਵਾਟ ਐਡ ਹੋ नहीं ਗਈ। बस नहीं 9 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆਨੇ ਆ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਲਿਆਨੇ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਰੁਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਰਾ। ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उधर भी चले जाते हैं। 9 साल ਦੀ ਬੱਚੀ ਲਿਆਨੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਤੇ 54 ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਇਹ नुसरत जहां बेगम नच्छो बेगम बोलिया नहीं जे चलो हाँ सही नच्छो बेगम हर जगह नच्छो बेगम ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ सुभान अल्लाह सही हो गया ये भी हो गया डन हाँ, हो गया जे सही चलो गुस्ताखी ਇਸ ਤੋਂ करना ਬਾਅਦ करो ਅੱਛਾ आप नाम दसो तो ਅੱਛਾ सही ना ਖੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਅੱਛਾ ਖੋਤਾ ਉੱਡਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਖੋਤਾ ਉੱਡਿਆ और जाए दौड़ जाए मुलहिदा ਲੈ मारांगे ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਨਾ बंदरा जी ਮੁਫਤੀ है ਸਾਹਿਬ ਨਾ 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 आगे ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ यार मलक साहब ਨੂੰ ਲਾਓ ਸੋ ਥੱਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ वैसे मुफ्ती साहब एक गल वैसे खुदा दी कसम बिल्कुल सही आखी जे ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁਲਹਿਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ मुलहिद इल्हादियत ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵੇ ਇੰਤਹਾ इल्हादियत ਯਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਮੁਲੀਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲੀਦੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ इल्हादियत ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ इल्हादियत ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੇ ਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਫੇਰੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰਾ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲੂਤੀ ਲਾਓ ਹੈ ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂ ਛਿੜਨਗੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਜਵਾਬ ਚਨਾ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਊਠ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਲਦੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੜਨ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹਾਂ लेकिन वो ਪੜ੍ਹੋ सवाल ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ वो नीचे लिख रहा है आस्कानी वहाबी अच्छा क्या नाम है अच्छा दूसरा खुश हो रहा है कहता है मैंने तेरी तस्वीर बना ली भाई टांग दो जाकर टांग दो बना ली गले में टांगो तावीज़ बना लो तावीज़ तावीज बना दो और पूरी फैमिली के गले में टांग दो वो अच्छा वैसे ये जो आया हुआ था ऊँट के पेशाब के बारे में भाई हमने तो बता दिया कि कुछ पी ही लो तो जान छूट जाएगी पता नहीं पिएगा या नहीं नहीं वो ना वो ये इंसानों का पिएगा ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਬੋਤਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਡਰਮ ਭਰੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅਹਮਦੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮੂਤਰ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ 100 ਸਵਾ ਮੂਤ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਡਰਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ बड़ा कुछ कर दे अंदर खाने बहुत कुछ मुफ्ती साहब ये कोई ऐसी बात मैंने सुनी जब मिर्जा जी वफात पा गए थे तो वहां पर वो जब लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए जी जी तो एक आदमी नीचे घुसकर क्योंकि वहां से बिल्कुल बिल्कुल वो है उसने बाकायदा पिया ऐसा है कुछ जी बिल्कुल है वो नीचे से ऐसे वो बुक भर के ना तो वो ऊपर जो थे कतरे जो क्योंकि बर्फ लगाई थी ना साइडों पर तो वो कतरे जो थे वो पी रहा था हाँ जी पीर साहब एक और बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है ये किताबों में ना लिखी नहीं इन्होंने लेकिन जो इनके बड़े हैं ना वो सुना के गए हैं जब वाक़या जब इसकी लाश को लेकर जा रहे थे ना लाहौर से तो जब ये ब्रेथ रोड पर आए हैं ना तो जो मुसलमान थे वो बड़े मुश्तैल थे ना इसके ऊपर उन्होंने बाल्टियाँ गोबर से छोटे पेशाब वगैरह से भरी हुई और इनके वो जो सारा जनाजा उसके ऊपर फेंकी थी ये बताते हैं मर्ज़ियों ने खुद हमें बताया मुझे पता है इस बात का लेकिन ये किताबों में नहीं लिखते इस बात को लिखा हुआ तो इनके बहुत बड़ा कुछ हुआ है इनके साथ लेकिन वो बताते नहीं हैं अच्छा फिर उसका कुछ नहीं बना वो क्योंकि बीमारी तो हैजे की थी उसका कुछ नहीं बना फिर उसने पिया था और ये तो उनके नजदीक तो बड़ी रूहानी मौत है ना कि मिर्जा कादियानी की मुंह मांगी रूहानी मौत जो आई थी वो सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के साथ जो आखिरी मुबाहला इसके साथ हुआ है तो
وہ تو بڑی روحانی موت ہوئی ہے نا جی حضرت جی کی روحانی موت ہوئی ہے منہ مانگی روحانی موت مر گیا تو ان کے نزدیک وہ غسالہ میت مرزا قادیانی تو وہ بہت روحانی چیز تھی نا تو اس لیے وہ پی رہے تھے کٹ بھر رہے ساری زندگی تو اپنی لمبی عمر دیا دعا نہیں، جس نے پیا اس کا کیا بنا؟ ہو گیا ہوگا یا وہ بھی مسیح موت بن گیا ہوگا بعد انہیں بھی کوئی دعویٰ کر دیتا ہوتا ہے ضرور ضرور دے دے ایسی کچھ بات ضرور ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ضرور 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 بالکل ایسے ہی بعد انہوں نے بھی کیا نا میں نے حضور مسیح موت کا غسالہ پیا ہوا ہے پیر صاحب یہ تو ماننا پڑے گا نا حضور نہیں مصعب خجور مفتی صاحب جہاں جاتے ہیں جس محفل میں پھر وہ رونق رہتی ہے وہاں پر بندہ بور نہیں ہو سکتا یہ تو ماننا پڑے گا نا یہ تو ہم اسے انکار نہیں کر سکتے یبڑیاں وہ تارک جوہان کدھر گیا جدے آستے میں آیا سی تتر ہو گیا بس بولتی بند لکھ دی لعنت قادیانیوں تواڈے دوستو رب صاحب آ کے بندے ہی نہیں ساتھ سڑیا بس یہ ہوئی ہے پجیاں نسیاں انہاں دیاں چنگا یہ ہویا ہے کہ وہ پیر صاحب نو تے انہاں گلاں دا پتہ نہیں نہ آیا تو پیر صاحب تے صرف وہ گلاں کر رہے جڑیاں پیر صاحب نو پتہ سمجھ آئی ہاں جی یہ ہوئی گل تو پھر جلے مفتی صاحب نے سارے وہ راز کھولے نے تے انہاں اصل دے پھر وچ نا پتہ ہے کہ مجبوری ہے نا جی خالد صاحب ساڈی کہ میری خاص کر کے میں اپنی مجبوری معذرت نال میں کسے ہور نو نہیں اٹیک کر رہا میں نہیں قادیانیاں نال قرآن حدیث نال گل کر میں ڈائریکٹ مرزے دیاں کتاباں وائی میرا اپنا میں کتاباں تو باہر جان ہی نہیں دیندا ادھر ادھر نہیں جان دینا میرا اپنا مفتی صاحب ہے موقف ہے میں کئی براڈاں تے وہ لے لیندے میں کہنا منو نہ لیا کرو تسی کرنی ہے تے قرآن حدیث نال ساڈا تہاڈا قرآن حدیث دا تعلق کی ہے ہے ہی کوئی نہیں بھائی تعلق گل کرنی ہے تے مرزا غلام قادیانی کتاباں تے کرنی ہے تے ٹھیک ہے اسی تیار ہاں لیکن قرآن حدیث تے نہیں اسی تہاڈے کرنا تہاڈا تعلق ایویں اسی جو قرآن حدیث نال گل کر رہی ہوئی ہے تے لوکی جڑے نویں سنن والے نے وہ ویکھ رہے ہون تے پتہ نہیں کوئی بڑی اسلامی کوئی گل ہو رہی ہے لوکاں نوں پتہ چلنا چاہیے مرزے قادیانی دے اوتے گل ہو رہی ہے بھائی وہ جنہ تک مرزے دیاں کتاباں نہیں کھلن گے لوکاں نوں پتہ ہی نہیں چلنا گل ہو کدے تے رہی ہے میں مفتی صاحب ایک نا ہفتہ پہلے دی گل ہے 1.5 ہفتہ ایک نا انہاں دی براڈ ہے او دا نام ہے آئی ڈونٹ لو مجھے تو وہ میں سن رہا تھا نیچے تو انہوں نے وہ جو پوسٹ لگائی تھی نا کہ عقیدہ ختم نبوت کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں تو میں نے نیچے نا کمنٹ کر دیا میں نے کہا یہ آپ کا چیلنج مرزا غلام قادیانی کو ہے یا مسلمانوں کو تو وہ کہتے ہیں فوراً کہتے ہیں اس کو اوپر لو اوپر لو اوپر لو اوپر لو تو انہوں نے مجھے اوپر لے لیا میں جیسے کیا میں نے کہا بھائی میرا تو سوال سیدھا سیدھا ہے کیونکہ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے وہ جامع صلح میں کہ نزول مسیح کا ذکر تو قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں لیکن عقیدہ ختم نبوت کا ذکر بکثرت تصریح موجود ہے تو آپ کا پھر یہ چیلنج ان کو ہوا نا ہمیں تو نہیں نا ہم تو نہیں جواب دے خالد صاحب ہے کوئی آئے نے علی صاحب انہوں نے ویکھ لیجیے تو پھر میں جانا ہے علی صاحب کون نے جی ٹھیک ہے ویکھو ویکھو ہیلو علی صاحب کی بات کرنی ہے آپ نے جی وعلیکم السلام جی اچھا میں چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے ہیں تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم کب کہتے ہیں حضرت عیسیٰ وفات پا گئے آپ قادیانی نہیں ہیں بڑی مزہ آیا مفتی صاحب اپنا علی بھائی کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں آپ چ نہیں آئے تو مجھے لگتا کوئی ٹون ہوئے جی بچارے بالکل ہی مست بھائی ماشاء اللہ حضرت جی جان دا اینڈ بڑا رہنا کیتا جان دے یار بھائی میں چنگا بھلا چلا سا معاف کر دو بیچارے رب رکھا بھائی السلام علیکم سمجھاؤ یار خالد صاحب انہاں نوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ بھی چلے گئے بھائی وہ ساتھی چلے گئے دیکھے کس کس قسم کی مخلوق آتی ہے ہمارے پاس عجیب ہے واللہ یعنی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں پھر بھی آ کے پوچھتے تم لوگ قادیانی نہیں
क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमा, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमा गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदियान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो हैं ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।